Welcome dear student. Today we are going to discuss introduction to partnership and today's topic is short sum of partnership accounts. How to calculate short questions of partnership account that we are going to discuss today. Look at sum number 3. In that first question is given to you. A partner withdraws identical amount at the end of each month from the firm. At the end of the year, total annual drawings is rupees 12,000. Interest on drawing is chargeable at 12% per annum. Determine the amount of interest on drawing of the year. Now friends, here the important question is, if a partner withdraws identical amount at the end of every month, then how the interest on drawing is to be calculated? That is the important point which we are going to discuss here. So friend, let's first of all find out the monthly drawings. Total drawings of the year is 12,000 divided by 12. So it will give us monthly drawings. So 12,000 divided by 12, monthly drawings is 1,000 rupees. Every year, the partner withdraw total 12,000. But what is the monthly drawing? Every month वो कितना अमाउंट विड्रॉ करता है? So total annual drawings को 12 से डिवाइड किया तो हमें मिला monthly drawings. यानी ये पार्टनर मंथली 1000 विड्रॉ करता है. That is the monthly drawings of a partner. Now when we calculate interest on drawings, what is the formula of interest on drawing? Interest on drawing is equal to PRN upon 100. P principal amount, R rate of interest, N number of years divided by 100. Here the monthly drawings is 1000, so 1000 multiply by rate of interest is 12%, so 12 by 100 multiply by N. N is 66 by 12. Friends, here the important point of this sum is that while a partner withdraw an identical amount at the end of every month, then we have to calculate interest for 66 month. हमें 66 month का interest गिनना है. 1000 12% 66 month, तो interest आएगा rupees 660. Now friends, while we calculate interest on drawing of an identical amount, you have to remember certain points. What are that points? If a partner withdraws in the beginning of each month, then N is equal to 78 by 12. If a partner withdraws at the end of each month, then N is equal to 66 by 12. And if a partner withdraws in the middle of each month, then N is equal to 72 by 12. Friends, ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई पार्टनर हर महीने के बिगिनिंग में, हर महीने की फर्स्ट डेट को, पहली तारीख को यदि एक स्पेसिफिक अमाउंट विड्रॉ करता है तो उस पे हम 78 मंथ का इंटरेस्ट गिनेंगे. जब कोई पार्टनर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ यानी कि 31st या 30 डेट को, हर महीने की 31st या 30 डेट को विड्रॉ करे तो हम 66 मंथ का इंटरेस्ट गिनते हैं. एंड इफ अ पार्टनर विड्रॉज इन द मिडल ऑफ ईच मंथ यानी हर महीने की 15 तारीख को यदि कोई पार्टनर विड्रॉ करता है तो उस पे हम 72 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. सो फ्रेंड्स, अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ये 78, 66 एंड 72 आया कैसे. एक तो आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि ये जब भी आएगा आपको लिख ही देना है, लेकिन फिर भी हम यहां पर देखते हैं कि ये अमाउंट आई कैसे. फ्रेंड्स, आप जानते हो कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ आर देयर.
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब सपोज एक पार्टनर हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ करता है। जैसे फर्स्ट रूल है हमारा कि इफ अ पार्टनर विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ देन n इज इक्वल टू 78/12। तो पहले हम सपोज करते हैं कि सपोज एक पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करता है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉ करता है। इसका मतलब सबसे पहला ड्रॉइंग्स वो करेगा जनवरी 1 को। जब वो जनवरी 1 को विड्रॉ करेगा तो उस अमाउंट पे हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक यानी पूरे के पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट गिनेंगे। तो 1 जनवरी को जो विड्रॉन करेगा उस पे हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 मंथ का इंटरेस्ट गिनेंगे। फिर वो विड्रॉन करेगा 1 फेब को। 1 फेब को विड्रॉ करेगा, उसके ऊपर फरवरी से लेकर दिसंबर तक यानी 11 मंथ का इंटरेस्ट गिनेंगे। फिर वो नेक्स्ट विड्रॉ करेगा 1 मार्च को, तो मार्च से लेकर दिसंबर तक यानी 10 मंथ का इंटरेस्ट गिनेंगे। इस तरह से वो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर एंड 1 दिसंबर को विड्रॉ करेगा। तो कंटिन्यूअसली 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। फ्रेंड्स अब इसका टोटल करेंगे हम 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 का टोटल विल बी 78 मंथ। इसलिए जब कोई पार्टनर बिगिनिंग में विड्रॉ करे तो हम 78 मंथ का इंटरेस्ट गिनते हैं, 78/12। अब जब कोई पार्टनर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ करे यानी हर महीने की अंतिम तारीख को विड्रॉ करे, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ करे, तो सबसे पहला वो ड्राइंग करेगा जनवरी 31 को। जब वो जनवरी 31 को विड्रॉ करेगा तो हम जनवरी का इंटरेस्ट नहीं गिनेंगे, हम इंटरेस्ट गिनना शुरू करेंगे फरवरी से, क्योंकि जनवरी 31 को विड्रॉ करता है तो जनवरी का इंटरेस्ट तो हम उससे ले नहीं सकते। फ्रॉम फरवरी टू दिसंबर we calculate interest for 11 month। उसी तरह से जब वो फरवरी 28 को विड्रॉ करेगा या 29 को विड्रॉ करेगा तो हमारा इंटरेस्ट शुरू होगा मार्च से दिसंबर तक यानी 10 मंथ का। जब वो विड्रॉ करेगा 31 मार्च को तो हमारा इंटरेस्ट शुरू होगा अप्रैल से दिसंबर यानी 8 मंथ का। इस तरह से हम 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड जब लास्ट में वो दिसंबर 31 को विड्रॉ करेगा तो हम 0 मंथ का इंटरेस्ट गिनेंगे, क्योंकि 31 दिसंबर को विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ द ईयर तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट गिनेंगे नहीं। अब इन मंथ का यदि हम टोटल करते हैं 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 देन टोटल इज 66, क्योंकि इसमें से 12 कम हो गया तो 66 मंथ का इंटरेस्ट गिनेंगे, जो आप देख सकते हो यहां पर n इज इक्वल टू 66/12। नाउ इफ अ पार्टनर विड्रॉ इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, अब यदि पार्टनर हर महीने के मिडल में यानी हर महीने की 15 तारीख को विड्रॉ करे तो उस पर हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वो ड्रॉइंग करेगा 15 जनवरी को, 15 जनवरी को विड्रॉ करेगा तो जनवरी के 15 डेज यानी आधा महीना एंड फरवरी से लेकर दिसंबर तक 11 मंथ यानी पहले आएगा 11.5 मंथ का इंटरेस्ट। फिर वो 15 फरवरी को विड्रॉ करेगा। जब वो 15 फरवरी को विड्रॉ करेगा तो फरवरी के 15 डेज यानी आधा महीना एंड मार्च से दिसंबर तक 10 मंथ यानी 10.5 मंथ का इंटरेस्ट गिनेंगे। ऐसे ही वो 15 मार्च को विड्रॉ करेगा तो 9.5 मंथ का गिनेंगे। ऐसे ही 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 एंड 0.5 टोटल देखेंगे तो हम 72 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। सो 72/12 इफ a partner withdraw in the middle of every month
then we calculate for 72 month interest. इस सम में at the end of each month था, इसलिए at the end of each month we have to calculate for 66 month. So 66 by 12 and answer is 660. Friend, this is for your knowledge purpose कि ये 78 कहां से आया, 66 कहां से आया, 72 कहां से आया, उसके लिए दिया है। एग्जाम में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट मंथली ड्राइंग, देन आफ्टर पुटिंग द फॉर्मूला you have to find out the interest on drawings. Second question, Amruta and Divya are the partners of a firm. Their capital ratio is 3:2. Amruta is to be paid 8% commission on net profit after deduction of such commission. What amount will be received by Amruta if the profit of the year is 96,876? Friends, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है. The profit of the firm is given to you, that is 96,876. Now we have to calculate commission of Amruta, and we have to give 8% commission to Amruta, but after deduction of such commission. और जब भी आपको ऐसा दिया हो after deduction of such commission, तो नेट प्रॉफिट उसमें 8% कमीशन है, तो 8 by 108 करेंगे. यदि 10% कमीशन होता तो 10 by 110 करते. 20% कमीशन होता तो 20 by 120 करते. तो 96,876 into 8 by 108 यानी 7,176. That is the amount of commission to Amruta. अब टोटल प्रॉफिट में से कमीशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा डिविजिबल प्रॉफिट. डिविजिबल प्रॉफिट इज 89,700. ये 89,700 डिविजिबल प्रॉफिट है. ये दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. व्हाट इज देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो? उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है फ्रेंड्स? सो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन. रिमेंबर फ्रेंड्स, देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2. दैट इज नॉट देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, दैट इज देयर कैपिटल रेशियो. ये इनका कैपिटल रेशियो है, ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं है. इट मींस सम में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है. जब प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हो, देन वी डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट इक्वली. सो 89,700 डिवाइड बाय 2 करेंगे, सो इट विल बी 44,850. ये 44,850 आ गया हमारा प्रॉफिट टू ईच पार्टनर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता. अमृता को टोटल कितना अमाउंट रिसीव होगा? सो अमृता को एक तो मिलेगा कमीशन और दूसरा मिलेगा प्रॉफिट. कमीशन इज 7176 एंड प्रॉफिट इज 44,850. दोनों को ऐड कर देंगे, सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता इज 52,026. दिस इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता. अमृता को टोटल कितना अमाउंट रिसीव होगा? 52,026 रुपीस. क्वेश्चन नंबर 3. विस्मय, अभिजीत and Kunal are partners sharing profit and loss in the proportion of 3:2:4. Manager is to be paid 10% commission on the profit, but after deduction of his such share. The share of profit of Abhijit is ₹30,000. Then determine the commission of manager. फ्रेंड्स, ये भी कमीशन वाला सम है. यहां पर हमको मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना है. बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि इस सम में हमको शेयर ऑफ अभिजीत इज गिवन. अभिजीत का शेयर दिया हुआ है एंड टोटल नेट प्रॉफिट इज नॉट गिवन.
लेकिन नेट प्रॉफिट हमें दिया नहीं है। सो फ्रेंड्स, हाउ टू कैलकुलेट द कमीशन ऑफ अ मैनेजर, that we will discuss here. So first of all, distribution of profit among the partner is 3:2:4. 3:2:4 में उन्होंने अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है। नाउ फ्रेंड, लेट्स मेक अ कैलकुलेशन। यहां पे एक कैलकुलेशन करते हैं हम। अभिजीत का प्रॉफिट दिया हुआ है, नेम ऑफ अ पार्टनर, द शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ अ पार्टनर एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अभिजीत का प्रॉफिट है 30,000 एंड व्हाट इज द शेयर ऑफ अभिजीत? अभिजीत का प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कितना है? 2। इसका मतलब जिसका 2 शेयर है उसका प्रॉफिट है 30,000। अभिजीत जिसका रेशियो है 2 उसका प्रॉफिट है 30,000। तो विस्मय यानी फर्स्ट पार्टनर, उसका शेयर है 3, तो 3 वाले का प्रॉफिट कितना? 2 वाले का 30,000, तो 3 वाले का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 30,000 डिवाइडेड बाय 2। सो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी 45,000। सो फ्रेंड, 45,000 आएगा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ विस्मय, तो विस्मय का प्रॉफिट हो जाएगा 45,000। ऐसे ही फ्रेंड्स हम कैलकुलेशन करेंगे कुणाल का। अभिजीत का 2 शेयर है तो उसका प्रॉफिट 30,000 है, कुणाल का 4 शेयर है तो कितना? इट विल बी 60,000। सो विस्मय का प्रॉफिट आ गया 45,000, अभिजीत का 30,000 एंड कुणाल का प्रॉफिट 30,000। इस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल तीनों का प्रॉफिट फाइंड आउट किया। अब इन तीनों के प्रॉफिट का हम टोटल करेंगे। टोटल इज 1,35,000। ये 1,35,000 क्या आया फ्रेंड्स? ये आया डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये डिविजिबल प्रॉफिट है और डिविजिबल प्रॉफिट में कमीशन भी माइनस हो चुका होता है, इसलिए इसमें ऑलरेडी कमीशन माइनस किया हुआ है, ये डिविजिबल प्रॉफिट है। सो फ्रेंड्स, अब हम जब मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करेंगे, सो मैनेजर्स कमीशन एट अ रेट ऑफ 10% इज 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। फ्रेंड्स, यहां पे हमने 110 नहीं किया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कि ये जो प्रॉफिट है 1,35,000 ये डिविजिबल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं है। एंड जब ये डिविजिबल प्रॉफिट है तो इसमें से ऑलरेडी मैनेजर का कमीशन माइनस हो चुका है, इसलिए 1,35,000 का हम 10 बाय 100 करेंगे, 110 नहीं करेंगे। एंड दैट्स व्हाई द मैनेजर्स कमीशन इज 13,500। Now friend, what is the simple method to recognize whether it is a divisible profit or a net profit? जब भी आपको पार्टनर्स के नाम दिए हो, जैसे इस सम में दिए हुए पार्टनर्स के नाम दिए हैं और आपने प्रॉफिट फाइंड आउट किया है और उसका टोटल किया है, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट है क्योंकि ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ प्रॉफिट है। लेकिन जब आपको सम में ऐसा दे दिया हो कि द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 30,000, देन इट विल बी आवर नेट प्रॉफिट, तो वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा और उसमें हम 10 होगा तो 10 बाय 110 करेंगे। यहां पे आपको अभिजीत का प्रॉफिट दिया था, उस पर से आपने विस्मय का प्रॉफिट निकाला, कुणाल का प्रॉफिट निकाला, तीनों पार्टनर का टोटल किया, तो ये जो प्रॉफिट आया ये डिविजिबल प्रॉफिट आया ऑफ आफ्टर कमीशन, इसलिए हम 10 बाय 100 गिनेंगे। Our answer is 13,500. Sum number 4. The profit and loss sharing ratio of Rajkumar, Kaushik and Sharma is 15:10:9. The total profit of the year of the firm is 68,000. Determine the share in profit of each partner.
फ्रेंड्स यहां पे हमें टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 68,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया है 15:10:9. So it's a very simple question that you have to distribute this 68,000 among these three partners in their given proportion. So distribution of profit among the partners in the ratio of 15:10:9. 15:10:9 में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो राजकुमार को मिलेगा 68,000 मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि राजकुमार का शेयर है 15, डिवाइडेड बाय टोटल 15 प्लस 10 प्लस 9, इनका टोटल हो जाएगा 34. सो डिवाइडेड बाय 34. 68,000 multiplied by 15 divided by 34 is 30,000. So Rajkumar का प्रॉफिट आएगा 30,000. Now we find out the profit of Kaushik. Profit is 68,000. उसमें कौशिक का शेयर है 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय टोटल, इनका टोटल करेंगे that is 34. So divided by 34. 68,000 multiply by 10 divided by 34, that is 20,000. ये 20,000 आया. ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे शर्मा का 68,000 प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय टोटल 34. 68,000 multiplied by 9 divided by 34 is 18,000. So friends, simply 68,000 is distributed among Rajkumar, Kaushik and Sharma in the proportion of 15:10:9. So amount is 30,000, 20,000 and 18,000. Question number 5. Mehta received his share 4 times of Pandya, while Bajpai received half the share of Mehta. Profit of the firm at the end of the year is 87,500. Determine the share in profit of each partner. Now friends, यहाँ पे 3 पार्टनर है, मेहता, पंड्या एंड वाजपेयी. Here the first sentence is given that Mehta received his share 4 times of Pandya. मेहता को पंड्या से 4 गुना प्रॉफिट मिलता है. तो सपोज करो कि पंड्या गेट्स 1 रुपीस. हम ये सपोज करते हैं कि पंड्या को 1 रुपीस प्रॉफिट मिलता है. देन मेहता गेट्स 4 टाइम्स ऑफ पंड्या. मेहता को कितना मिलेगा? पंड्या का 4 टाइम्स. पंड्या को 1 मिलेगा तो मेहता उसका 4 टाइम्स. 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, इट मींस मेहता गेट्स 4. अब वाजपेयी रिसीव हाफ द शेयर ऑफ मेहता. वाजपेयी को मेहता का हाफ शेयर मिलेगा. तो 4 का हाफ मींस 2. 4 का हाफ मींस 2. इट मींस मेहता को 4 मिलेगा, पंड्या को 1 एंड वाजपेयी को 2. So friends, their profit and loss sharing ratio of all the partners will be मेहता, पंड्या एंड वाजपेयी का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होगा मेहता का 4, पंड्या 1 एंड वाजपेयी 2. So profit and loss ratio is 4:1:2. Now this profit of 87,500 will be distributed among Mehta, Pandya and Vajpayee in the ratio of 4:1:2. तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स के बीच में, और तीनों पार्टनर्स के बीच में हम 4:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो मेहता को मिलेगा 87,500 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय तीनों का टोटल 4 + 1 + 2 7. So 87,500 into 4 divided by 7. So Mehta gets a profit of 50,000 rupees. Mehta को प्रॉफिट मिलेगा 50,000 rupees. Now we calculate for Pandya. अब हम पंड्या का कैलकुलेशन करेंगे.
87,500 इज द प्रॉफिट, उसमें पंड्या का शेयर है 1 बाय टोटल 7, 1 बाय 7. So 87,500 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 7 यानी 12,500. एंड वाजपेयी को कितना मिलेगा? 87,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय टोटल 7. So 87,500 into 2 by 7 यानी 25,000. So friends, हम जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो मेहता को 50,000 मिलेगा, पंड्या को 12,500 मिलेगा एंड वाजपेयी को 25,000 रुपीस मिलेगा. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड आउट किया एंड उस रेशियो में हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया.